Hello everyone, this is the final video in the series that we are currently covering. In the previous video, I solved the first 5 parts, that is part 1 to part 5, where we solved a total of 20 questions of this mental ability test, aka logical reasoning. So in this video, I will try to cover the remaining questions. And there are 5 more parts that are left, 6 to 10, and it will have a total of 20 questions as well. So I will try to cover those in this video. So without wasting any further time, let's start. So the part 6, इस part 6 में क्या करते हैं? इस part 6 में mostly the questions that are being asked to us, उसमें हमको figure को complete करना होता है. तो we are being given with 4 different options, उसमें से एक option ऐसा होगा जो इस figure को complete कर देगा. तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखें तो क्या इसको कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंड है, द एंड दैट इज हियर इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल दिस फिगर. सेम इज द केस विथ बी, नहीं हो पाएगा. सी में अ फ्यू थिंग्स आर राइट बट देयर इज अ प्रॉब्लम. यहाँ पे वी ओनली हैव दिस वन, वी नीड टू सच ladders kind of figure, so C is also not right. Option D is the remaining and it fulfills everything, so it will be the answer. Next question number 22. So ये तो easy है, this is very easy. The only figure that is missing here is a square and we can see that in option number B, so this is right. In question number 23, we need something like, so we need something like this to cover this figure. Let me redraw this. So we need something like this shape to cover this thing, and then we need a figure to fill this gap as well, something like this. So we can see this only in option number B, so this is the right answer. Question number 24, good question in my opinion. So option number C, we can visually understand that this is not the right answer. Same is the case with D as well. This option number A and B, which one is correct? So in this we can see the arrow has started from a downward direction, or the figure has started downward then has moved upward, but in option number B it has started from upward direction. So which one is correct, A or B? So A is correct, because here we need the first figure as downward only. Here we need the first figure to be in the downward direction, not in the upward direction. So option B will be the wrong answer. Option A is the right option for us. Question number 25. In this part, यहाँ पे basically एक मिरर प्लेस करा जाता है. अब मिरर इज बीइंग प्लेस्ड एंड वी आर आस्क्ड कि अगर इस मिरर को प्लेस करें तो फाइनली जो इमेज बन के आएगा, मिरर इमेज, वो कैसा कुछ दिख रहा होगा. तो अगर यहाँ पे अगर मिरर रखें, यहाँ पे कैसा फिगर बनेगा? ये दो सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये दो जो सर्कल है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा. सो वी विल ट्राई टू सी इज देयर एनी ऑप्शन विच हैज दिस सिमिलर फिगर प्रेजेंट. तो अगर 25 में हम देखें तो वी कैन सी दैट इन ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी, इन बी वी कैन सी दैट, तो विल होल्ड ऑन फॉर मिनट. सी भी गलत, डी भी गलत, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे ये एरो फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सर्कल ऐसा हो जाएगा. तो वी कैन सी दैट ओनली इन ऑप्शन नंबर बी. इन रेस्ट all the other options, a few things are missing, so option number B will be the answer. Question number 27. So when we place a figure, a mirror, it will convert, P will convert something like this, V will remain similar to what it is, and A will also remain the same, so it will be like this. So which option is like that? This is not, yeah, this is, these two are not, so option number B will be the answer. The last question in this series is this E. So these dots need to be in the
no, these dots won't be here. These dots will move to the other side and E will also rotate. Let me erase this. So the figure that will complete this will be, is option number A correct? No, it is not correct because the E has moved, which is not right. And same is the case with these dots. These dots should not be here, these dots should be here. B is not correct because there's no mirror image given for this letter E, so this is not correct. Option number C, yeah, this has everything present which we need in our mirror image, so this is the right answer and this is not correct. तो हम लोग पार्ट 7 ख़त्म कर लिए. इस पार्ट में मोस्टली मिरर इमेज दिया रहता है और हमको फिगर दिया रहता है, उसका मिरर इमेज हमको बताना होता है. ये आसान सवाल था, अच्छा सवाल था. आई होप आई एम एबल टू डिलीवर and we are on the same wavelength. Last 3 parts we are left with. Part 8, इसमें क्या होता है, we are given a figure, उसको 2 times we fold that figure और एक बार उसमें कोई कट लगाते हैं. तो we can see कि फर्स्ट फोल्ड इस डायरेक्शन में हुआ है, सेकंड फोल्ड इस डायरेक्शन में हुआ और जब सेकंड फोल्ड हो गया है तो वहाँ पे एक कट लगाया गया है. ऐसे फिगर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको ये ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि कट लगाया कहाँ जा रहा है. इज इट इन द सेंटर, इज इट इन कॉर्नर्स, और ये कहाँ है, या ये साइड में है, ये सब देखना है. तो वी कैन सी कि ये कट समवेयर एकदम सेंटर में ही जा रहा है. तो जब ये ओपन होगा ये, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनाएगा, फिर ऐसा ही कुछ ऐसा यहाँ बनाएगा. फिर तो विल ट्राई टू सी सच फिगर इन द ऑप्शन. तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये 2 ऑप्शन ऐसा है जो लग रहा है कि मिरर इमेज जो फॉर्म होगा वो कुछ इसी दोनों में से होगा. अब नाउ विल सी कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा. फॉर दैट विल मूव अगेन टू द ओरिजिनल फिगर. यहाँ अगर देखें हम तो फर्स्ट कट कुछ ऐसा है, तो इसको जो फुलफिल करने वाला होगा कुछ ऐसा होगा, फिर जो यहाँ होगा कुछ ऐसा होगा. तो ये इनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा है? इनवर्ड की तरफ. तो इनवर्ड की तरफ मूव करने वाला ऑप्शन मेरे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए नहीं. तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी कट एकदम मिडिल में है, तो 4 फिगर मेरे पास बन के आएगा. तो ये नहीं होगा, ये 4 फिगर है बट वी कैन सी कि ये गलत है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ बी एंड सी. इसमें कौन सा, पहले तो देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ऑप्शन. तो जो डिफरेंस है बस वो इस अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्राइंगल में है कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसका जो अपवर्ड, उसका जो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो ये ट्राइंगल्स है ये किधर मूव कर रहा है? आउटवर्ड मूव कर रहा है. और इसमें ऑप्शन नंबर सी में ये इनवर्ड मूव कर रहा है. तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड, ये हम अपने फिगर से पता करेंगे. तो अगर इस फिगर को देखें तो जब ये बन के आएगा तो कुछ यहाँ आएगा, ये जब भी कुछ बन के आएगा तो एक तो यहाँ ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है. बट जब ये ओपन होगा ऊपर की तरफ अगेन ये खुलेगा तो ये बंद होके ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे बन जाएगा. तो वी विल हैव ऑप्शन नंबर सी एज करेक्ट एंड नॉट बी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. यहाँ अगर देखें तो एक फोल्ड हुआ, दूसरा फोल्ड हुआ और ये कट जो है वो सेंटर में तो नहीं है, दिस इज नॉट इन द सेंटर. तो जब ये ओपन होगा एक बार तो ये जो सर्कल है वो यहाँ एक दिखेगा. फिर जब ये एक बार जाएगा तो यहाँ पे एक बार और फोल्ड होगा. तो यहाँ जब ये पूरा फिगर ओपन होगा तो यहाँ पे 4 सर्कल नहीं होगा, 2 सर्कल होगा और 2 सर्कल सिर्फ ए और बी में दिख रहा है. तो ऑप्शन मेरा ए सही होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये प्यारा सवाल है. फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड और थर्ड फोल्ड में इसको ये कुछ ऐसे मूव करा गया है. तो जब ये मूव नहीं करा गया, बेसिकली काट दिया गया है इसको. तो जब ये ओपन करेंगे इसको, तो जब ये नीचे की तरफ देखेंगे तो कैसा आएगा? ऐसा कुछ आएगा फिगर. ऐसा फिगर वी कैन सी ओनली इन ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू द second last part of this. I love these kind of reasoning questions.
दैट इज पार्ट 9 बिकॉज ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है कि हाउ वी आर कमिंग टू एन आंसर एंड व्हाट नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 33 को अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि देर आर मेनी फिगर्स दैट आर बीइंग गिवन टू अस, और फिर कहा जाता है कि ऑप्शन ए बी सी और डी, वी हैव टू लुक इनटू ऑल दीज ऑप्शंस और देखना है कि कौन सा इमेज सही है जिसमें ये सारा फिगर यूज हुआ है प्रॉपरली। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखें तो इसमें अगर हम ये फिगर देखें ऑप्शन नंबर ए का, तो हमको दिखेगा कि ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ है, ओके। उसके बाद ये ट्राइंगल कहाँ से आया वी डोंट नो, तो ये गलत है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो ये पोर्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा जो स्क्वायर है वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस फिगर, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। बाकी यू कैन चेक, इसमें समथिंग विल बी मिसिंग, इसी कारण ये सब गलत होगा। नाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, previous page. Now we'll solve the question present in the next page, that is this one. क्वेश्चन नंबर 34 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दो ऐसा है, जो यहाँ पे ये दोनों तो दिख रहा है, ये जो स्क्वायर है वो यहाँ स्क्वायर नहीं रह के ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ ये दोनों दिख रहा है जो था, और यहाँ ये स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अगर ये देखें तो यहाँ ये ट्राइंगल है, यहाँ ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, पहले तो ये देखते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये वाला यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया है, एक्यूट ट्राइंगल है से, बट हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला फिगर यहाँ दिख रहा है इन दिस, ये भी फिगर दिख रहा है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल इसको अपोजिट करके यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, सब कुछ है प्रेजेंट इसमें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सारा कुछ इधर लगा हुआ है ऑलरेडी, ये देखें यहाँ पे है, ये दोनों साइड का पोर्शन देखें तो वो भी यहाँ और यहाँ दिख रहा है, तो कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं है, ये सारा प्रेजेंट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। तो आई होप you would have enjoyed this while I was solving, and I think you guys do practice what I do, and I hope it makes sense to you. Moving to the last 4 questions of this series, ये भी बहुत अच्छा सवाल होता है। इसमें what we have to do is कि ये फिगर जो यहाँ बना हुआ है, ये फिगर we have to find कि कौन से ऑप्शन में ये फिगर प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो ए नंबर में ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये चले यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, तो इस फिगर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो यहाँ तक, यहाँ और ये नीचे होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ये थोड़ा लंबा है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ से मूव किए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और हाफ यहाँ तक गए, तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर डी में मेरा वो सब कुछ है जो हमको चाहिए। मूविंग टू दिस वन 38 नंबर, अगर इस फिगर को देखें तो ये एक वी शेप है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वी कैन सी वी शेप यहाँ तो है, ओके, वी शेप, बट ये वी शेप नहीं है, आई वुड से यहाँ, यस ये तो है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर चेक करें हम, यहाँ एक हाफ सर्कल बना हुआ है, यहाँ एक हाफ सर्कल फुल हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर ए फुलफिल तो कर रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करते हैं। बी में यहाँ सर्कल नहीं देखने को मिल रहा है, सी में यहाँ पे ये उल्टा मूव कर गया है, इसलिए ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो वी वर करेक्ट, ऑप्शन ए में ही मेरा सही आंसर है और इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, अगर हम देखें 39 को तो यहाँ एक एल शेप दिख रहा है, ये एल यहाँ बन तो रहा है बट ये छोटा है, अगर यहाँ देखें तो ये एक पूरा एल बन रहा है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है।
नाउ वी आर लेफ्ट विथ जस्ट वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो अगर इसको देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो साफ साफ वी कैन सी कि इट इज प्रेजेंट इन ओनली ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही होगा। सो वी हैव सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन। In the very first lecture, I solved all the questions of maths section. In the next one, I solved questions of English section, and in the last two videos, I solved all the questions in which was present in reasoning section. So we have done our part. I hope you guys would have enjoyed this. In the next series of videos, I might cover questions of different class or maybe different exam, maybe Sainik school, maybe other school questions as well. So thanks a lot for tuning in. Till then, keep learning.